ماحول جو ہے یہ انسانی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز بھٹی صاحب۔ ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک مقام ہے کہ انہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر بڑا کام کیا ہے۔ تو آج ہم اسلام آباد کے نیشنل پارک میں دامنے کو سے تھوڑا اوپر موجود ہیں، سڑک پر ہیں۔ تو ہمارے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو راول ڈیم اور اس سے ملحقہ جو شہر کا حصہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو بہت شکریہ بھٹی صاحب کہ آپ نے وقت دیا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی طرف سے اقدامات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو ماحول کے لیے، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ ماحول کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو کیا اقدامات اٹھا رہی ہے حکومت پاکستان؟ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حالیہ بارشوں میں امریکہ سمیت دنیا میں ہر جگہ، اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ فلڈ آئے۔ جی بالکل، شدید بارشیں ہوئی ہیں، اور یہ گلوبل وارمنگ کا جو الرٹ ہے، جو حصہ ہے، جو اس کے خطرات کی علامات ہیں، وہ یہی ہے۔ اور یہ 1000-100 ایٹم بموں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کو منٹوں میں جو تباہ کر سکتا ہے وہ ایک یہی ہے، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے جو مضر اثرات ہیں نا وہ۔ اچھا، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ دیکھو دنیا بھر میں اس پر بہت توجہ دی جا رہی ہے، بڑا سوچا جا رہا ہے۔ پاکستان میں دو قسم کے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ ایک تو MOCC منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی طرف سے، جس کو پہلے 10 بلین ٹریز نامی پروجیکٹ کہا جاتا تھا، جو عمران خان نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا اپ سکلنگ گرین پاکستان پروگرام۔ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ آج تک نہ ضرورت کے مطابق فنڈز فراہم کیے گئے اور نہ ہی ٹائم پہ فراہم کیے گئے۔ آپ سنجیدگی دیکھیے گورنمنٹ کی کہ نہ ہی ضرورت کے مطابق اور نہ ہی وقت پر فنڈز فراہم کیے گئے۔ صحیح۔ پھر یہ کہ PC1 جو بنایا اس میں بے شمار غلطیاں ہیں۔ پھر 50% شیئر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور 50% شیئر ہے پروونشل گورنمنٹس کا جو اس پہ کام کرتی ہیں۔ پھر شروع میں یہ سٹارٹ تھا کہ یہ جناب 2019 میں سٹارٹ ہوا 10 بلین کا، اور آگے یہ اسی کا حصہ چل رہا ہے۔ اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہا ہے، جتنی توجہ دینی چاہیے تھی بے شک۔ تو ابھی بھی اگر اس نے توجہ نہ دی، پاکستان نے، دنیا بھر نے بلکہ توجہ نہ دی، کہ موت کو قریب آ رہی۔ اچھا، یہ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں شری رحمان صاحبہ کو ایک ایوارڈ بھی ملا، اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے انہیں ایوارڈ دیا گیا، اور پاکستان کے کام کو بڑا سراہا گیا ہے، خاص طور پہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، پھر جو گلوبل وارمنگ ہے اس حوالے سے۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، فیلڈ میں جو کام ہو رہا ہے نا، ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہاں ہوتا ہے فنڈنگ کا۔ آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی فنڈز فراہم کرنے تھے ابھی تک 30-35% فراہم کیے جا چکے ہیں، 2019 سے 2023 تک، پھر 24 تک، پھر اب 25 آ گیا، ابھی تک جتنے فنڈز فراہم کیے جانے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بیک اینڈ پہ کیا وجوہات کیا ہیں؟ کیوں گورنمنٹ جو ہے فنڈ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ حالانکہ ہمارے ہاں اس پہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے، پاکستان بہت سارے ملکوں سے بہت آگے ہے اس پہ کام کرنے میں، اور گلوبل وارمنگ کو روکنے میں پاکستان بہت آگے ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا، ان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، ان کے پاس جناب سارا کچھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے 40% سٹاف سے آتا ہے اس کا۔ اب سٹاف کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ 40%۔ اب 40% سے کم وہ ہو سکتا ہے کام۔ پھر اسی طرح جو فنڈز دینے چاہیے تھے، اگر موقع پہ پورے فنڈز، جب ٹائم ہوتا ہے بجائی کا، جب ٹائم ہوتا ہے نرسری ریز کرنے کا، جب ٹائم ہوتا ہے پلانٹیشن کا، اسی وقت اگر فنڈز فراہم کر دیے جائیں اور جتنے ضرورت کے مطابق فنڈز فراہم کر دیے جائیں تو کام ہمارا بہت اچھا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ یعنی کہ یہ کہہ لیتے ہیں ہم فنڈز دیں، آپ کام کریں،
वो काम करा देते हैं फील्ड वाले, ये फंड्स नहीं देते, वो फिर छुपते फिर रहे होते हैं जो लेने वाले होते हैं, लेबर वाले या दूसरे से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका PC1 भी दोबारा नजरसानी करे उसका, और उस पे जनाब फंड्स के हवाले से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि उनको वक्त से पहले फंड्स मिल जाए, ताकि नर्सरी रेज करें। और जब ये 2 सीजन होते हैं ना प्लांटेशन करने के लिए, बिल्कुल, एक ये अगस्त है हाँ, और एक फरवरी है। तो अगर आप फरवरी के जो फंड्स मार्च में देंगे तो अगस्त के फंड सितंबर में देंगे, तो कैसे? ये है मसला असल में। फिर ये फंड जब चलते हैं 2-2 महीने रास्ते में रहते हैं, कभी जा रहे हैं स्टेट बैंक, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, तो ये डिले हो जाते हैं। बहरहाल ये बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक तो जो खास तौर पे अब बातें, थोड़ा सा मौजू को चेंज करते हैं और हम आते हैं इस तरफ के जो दरख्त काटे जाते हैं। दरख्त काटने वाला शख्स कभी ये नहीं सोचता कि वो कितने इंसानों की सांसें जो है वो उनको छीन रहा है। एक दरख्त जो है कितनी ऑक्सीजन पैदा करता है माशाल्लाह, लेकिन जो काटने वाले हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि वो इंसानी सांसों को जो है वो तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इंसानी सांसों को हमसे छीन रहे हैं। तो खास तौर पे जिस जगह हम खड़े हैं, ये नेशनल पार्क है, दामने को का इलाका है ये, और दामने को में खास तौर पे ये जो नेशनल पार्क के अंदर, इसमें हर साल आग लग जाती है। हर साल जो है वो आग लगती है, दरख्तों को जो काटा जाता है उनकी बाकियात को छुपाने के लिए, उन पे मिट्टी डालने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या कौन लोग जो है वो इस तरह की हरकत करते हैं? अच्छा, एक तो भाई साहब ये है कि जो आग लगने वाला है ना, ये आग तकरीबन पूरे मुल्क में लगती है, मुख्तलिफ जंगलात में, आज़ाद कश्मीर में, दूसरे। होता ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आग के हादसात भी बढ़ते जा रहे हैं। बेशक। और ये आग लगने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो खुद दरख्त काट के लगाते हैं, बहुत सी वजूहत हैं इसमें। क्योंकि ये दरख्त काट के आग लगाने वाली बात वो इतनी वो नहीं है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। हाँ, दरख्त जो काटते हैं ना, उसके पीछे टिम्बर माफिया बहुत ताकतवर है। वो इतना ताकतवर होता है कि हुकूमत के बड़े बड़े लोग उनके पुष्ट के पीछे होते हैं, वो काट रहे होते हैं। अब आप देखें ना, अब आज़ाद कश्मीर के रहने वाले नीलम से चलता है दरख्त, पिंडी आ जाता है। बेशक। एक उधर से चलता है कोहिस्तान से, वो पिंडी आ जाता है। दर्जनों बीच में इनकी वो हैं पिकट्स लगाई हुई हैं इन्होंने, वो क्रॉस करके कैसे आ जाए? अगर कोई ना कोई मिले और बहुत ताकतवर है, फिर उसका मुकाबला करने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी कुछ मिले हुए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ उनका माफिया का मुकाबला करने के लिए ना उनके पास वेपन्स हैं, ना उनके पास गाड़ियां हैं, ना उनके पास उतना अमला है, तो ना उनके पास इख्तियारात हैं। अगर वो पकड़ के पुलिस वालों को देते हैं तो पुलिस वाले वो कार्रवाई नहीं करते जो करनी चाहिए। अदालत में जाते हैं, वो सजा नहीं मिलती जो सजा मिलनी चाहिए। तो जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, तो ये चीज ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, एक कुल और फितरत का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो माहौल को साफ रखने के लिए इकदाम तो गवर्नमेंट कर रही है, उसके साथ साथ ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए कि हमारे ये जो हमारे बैक पे आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ों के अंदर जंगलात हैं, छोटे छोटे जो झाड़ियां हैं या जो दरख्त हैं, फॉर एवर जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, इनके बचाव के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? तो भाई साहब, इसमें ना सबसे अहम चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में शऊर पैदा करना कि ये दरख्त लगा हुआ है, ये आपकी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो दरख्त लगा देते हैं, अब उसकी हिफाजत करना किसका काम? सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली हिफाजत नहीं करते, वो हर पौधे के साथ नहीं बैठते। ये हमारा आपका सबका जिम्मेदारी है, तो उन पौधों की हिफाजत करें, उनकी ओनरशिप लें, फिर ही जाके ये पौधे बढ़ सकते हैं। ये एक जानदार चीज़ है, जैसे इंसान है, ये भी जानदार चीज़ है, इनको पालना बड़ा मुश्किल है। एक पौधा 3 साल का हो जाता है कायल का, एक बकरी या एक गाय ऊपर से पाँव रख दे तो वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये सबको सोचना पड़ेगा, सबको इसको ख्याल रखना पड़ेगा, सबको इसको शऊर पैदा करना पड़ेगा कि पौधों की हिफाजत करें। जब हम सब मिलके करेंगे ना, फिर हिफाजत होगी। अगर आप बाकी दीगर दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त कहाँ पर है?
जो दुनिया के 10 मुल्क हैं ना, जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से, जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान, ठीक है। और अगर हम देखें कि उसके मुकाबले में हम काम कितना कर रहे हैं, तो काम उस कदर नहीं हो रहा जिस कदर होना चाहिए। चलो ये एक स्टेप लिया गया 10 बिलियन या अपस्किलिंग ग्रीन पाकिस्तान का, वो लिया जाना चाहिए, मगर उस लेवल पे काम नहीं हो रहा जिस लेवल पे काम होना चाहिए, या जिस लेवल का खतरा है ये, उस लेवल का नहीं हो रहा। इस काम के लिए हमारे जो अदारे हैं वो एक तरफ आप कह रहे हैं कि फंड जो है वो रोक दिए जाते हैं, टाइमली फंड नहीं मिलते, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो फंडिंग होती है वो किस बेस पे होती है? लेकिन अभी जो IMF दे रहा है वो तो ज़ाहिर है कि उसके साथ SOPs बनेंगे, वो शराइत तय होंगी तो वो देगा, उस पर चलना पड़ेगा। अभी मसला ये है कि जो हमारे अपने फंड्स हैं, यानी फेडरल के और प्रोविंशियल्स के फंड हैं, ये चाहिए टाइमली दें उनको। फिर जो स्टाफ की शॉर्टेज है वो पूरी करें। जो अब जो देखें ना, जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, जो मिलों का उनके पास जंगल होता है हिफाजत करने, उनके पास कोई कन्वेंस नहीं, उनको कोई पेट्रोल नहीं देते। देखे ना, अब मुझे 10 किलोमीटर का जंगल दे दिया, मैं हिफाजत करूँगा, मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है, मेरे पास पेट्रोल भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे करूँ? तनख्वाह भी थोड़ी सी है। अब ये भी है, देखे ना, अभी आप एक तो और मजे की बात बताऊं कि मिनिमम तनख्वाह जो है वो 37,000 है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। उससे जो कम देगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, इसके PC1 में लिखा हुआ है कि 15,000 तनख्वाह दो लेबर को। कौन पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? अपनी ही बात को अदारे के जरिए कंट्राडिक्ट भी किया जा रहा है। देखो ना, अब अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक कानून है, उसको फॉलो करना चाहिए, इदारों को तो फॉलो करना चाहिए ना। बिल्कुल। अब 500 रुपये पर डे अगर वो देंगे तो 15,000 महीने पे देंगे ना उनको, तो ये गैर कानूनी काम है कि नहीं है? बिल्कुल। फिर किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? तो गैर कानूनी हो रहा है, आज तक उन्होंने किसी में रिवाइज नहीं किया। अच्छा, तो नाजरीन देखिए, आज मुमताज भट्टी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जो बातें बताई हैं कि एक तरफ तो 37,000 या 40,000 रुपये उजरत मुकर्रर की जाती है एक मजदूर की, एक हेल्पर की उजरत जो है वो इतनी मुकर्रर की जाती है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के अपने ही झैली अदारे 15,000 रुपये पे ये काम ले रहे हैं, उजरत दे के 15,000 रुपये उजरत दे के, और वो 15,000 भी लोगों को टाइम पे नहीं मिल रहा है। एक तो ये इशू बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसके साथ साथ आपने आज जो गुफ्तगू की है भट्टी साहब ने, वो आपने मुलाहिजा फरमाई है, और आप हमें ये बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुकूमत पाकिस्तान किस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकती है, और इसके लिए ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो उठाए जा सकते हैं। तो कमेंट्स की सूरत में आप हमें ये ज़रूर बताइएगा